Good evening, buddy. अरे गुड इवनिंग एवरीबॉडी. माय नेम इज़ पार्थ. आज Q&A आया है. मतलब बेसिकली कई लोग ईमेल भेजते हैं, तो एक ईमेल उठा के आज पे हम बात करेंगे. मिस्टर रोहित करके हैं कोई, नाम पूरा नहीं लेना चाहता मैं. और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आप इंटरेस्टेड है अपने क्वेश्चंस को डालने में, तो PARTHSINGH109@gmail.com पर आप 100% अपने पॉडकास्ट अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा उसको पॉडकास्ट पे लेने के लिए. कई लोग पॉडकास्ट पे रूबरू आना चाहते हैं वीडियो पॉडकास्ट में, तो वो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपके साथ वीडियो पॉडकास्ट पे आऊँगा, बिकॉज मेरा टाइम शेड्यूल का थोड़ा इशू है और मेरा फोकस कहीं और रहता है अभी थोड़े कुछ टाइम से. तो उसमें मेरे को डिपेंड करता है मेरे पास टाइम है कि नहीं. तो आप अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए ईमेल पे, और जो पॉडकास्ट है उसमें मैं उसको कवर करूँगा. एनीवे आपके क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, तो रूबरू होने का कोई बात यहाँ पे है नहीं. इट्स नॉट लाइक अ डेटिंग और समथिंग लाइक दैट कि आप मेरे साथ रूबरू होना चाहते हैं. आप सामने प्रत्यक्ष रखना चाहते हैं अपना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा. ठीक है. तो रोहित करके हैं. हेलो पार्थ सर, I am from Nepal and your viewer in YouTube. My age is 17. I am a student. I believe that I am a very curious guy. For long, I have been watching Sandeep Maheshwari's Sadhgurus and even your videos. And over a period of time, I developed a confusion whether I should meditate or not. I have watched basic meditation video by Sandeep Maheshwari. Also other meditation videos of other creators. Everyone is talking about the importance of meditation, including Sandeep Maheshwari, Sadhguru and so on. At the same time, there are so many people who claim that meditation has ruined their life because of Kundalini awakening and other several experiences. In your video, you said that the meditation is the first step towards spirituality, and after realization, when we start to understand and feel oneness with the universe, no desire for the achievement of your dreams remain with so. So, is it possible for a person not to enter into spirituality, mysticism, or something like Kundalini, etc., and still be benefited from the advantages of meditation, like increased focus, mental stability, etc.? If yes, how can one do it in a safe way? And if no, what about the people, especially the students who are taught to do meditation regularly because they want to progress in their lives and are just seeking for their better focus and stability rather than spiritual awakening or getting rid of the desires of their dream? You also said that it's better not to enter spirituality for students. So I'm really curious to know whether I'm supposed to do meditation or not. Please sir, this is my very humble request for you to provide me a proper explanation regarding my hoping to receive your reply as soon as possible. Thank you. रोहित, ये क्वेश्चन का जवाब जो आपको मिलेगा ये पॉडकास्ट में ही मिल पाएगा. और तो बेलनी इनका क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं. कहना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी के अवेकनिंग एक्सपीरियंस हो जाती है और ये सब हो जाता है, तो वहाँ उसमें मेडिटेशन करना सही है कि नहीं है. सिर्फ स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए और एंजाइटी ख़त्म करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, नंबर 1. नंबर 2, आप कहते हो कि डिज़ायर छूट जाएंगे, तो मैं डिज़ायर नहीं छोड़ना चाहता, और फिर भी मैं जस्ट उसके जो बेनिफिट्स है वो लेना चाहता हूँ. तो क्या मैं 100% मेडिटेशन करना स्टार्ट करूँ या ना करूँ? इस पे थोड़ा सा लाइट दीजिए. 100 क्या 250% you should not enter into spirituality or any kind of meditation, because एक एंगल है कि the meditation, some people use it for tension, stress, which is temporary. It's like smoking a cigarette, exactly like that, because you think that the stress will go away, but it will not go away.
The stress will go away for a few hours or minutes, but the stress will come back. Number one, this has to be kept in the mind. What we imagine is कि हमारा जो जिंदगी में टेंशन चल रहा है, whatever tension we are going on, whatever stress we are going on right now, anything we are having, the meditation will cure it away. The meditation is not a cure. The meditation is like comedy. It's like dopamine. Boom, 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 out. So, it's not going to take all the stress and depression away because it's all connected to intellectual suffering. This is what people are not understanding. Recently वीडियो मैंने अभी किया, उसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया. फ्रेगमेंटल रियलिटी और कंप्लीट रियलिटी मैंने 8 साल लगा दिए अपने नर्क जैसे जीवन में ये चीजें डिस्कवर करी. पाताल लोक में रहा, ज्वालामुखी के अंदर जला, लावा के अंदर तड़पा, फिर जाके वो चीज निकल के आई है और वहां पे नीचे लोग हग रहे हैं कमेंट में. इसीलिए मुझे और गुस्सा आता है कि इनके साथ काम ही क्यों करना है, क्यों मैं इनके साथ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं इन लोगों के साथ, कि कुछ नहीं समझ में आया. एक आदमी का वहां कमेंट नहीं दिखेगा कि सर आज मेरा एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर. इनफैक्ट कमेंट क्या आ रहे हैं, संदीप महेश्वरी इसकी धज्जियां उड़ा देगा, ये उसके सामने बैठ जाए एक बार. ये कमेंट आ रहा है. Nobody is serious. Nobody wants to cure the suffering. Nobody wants to understand what is suffering. And everybody complains at the end of the day, I am suffering. But when the person is giving the answer, you are not understanding because you don't have the bloody focus. There is no focus at all because you want to watch Tarak Mehta. Your focus has been shattered and devastated because of social media. You cannot read a newspaper. You cannot read an entire book. People ask me for audiobook. You cannot see the entire podcast. You cannot even remain on the podcast. The maximum audience retention I get or Sandeep gets or whoever, everybody who is जो भी ज्ञान पेल रहे हैं, the maximum audience retention they get is 15%. जब आप अच्छे से बात कर रहे हो, नहीं तो it's 10%. जो वो वीडियो है ओशो और कृष्णमूर्ति के खिलाफ नहीं, मतलब ओशो एंड कृष्णमूर्ति डिजायर के खिलाफ क्यों थे, ये जो वीडियो मैंने डाला था अभी पॉडकास्ट में, उसमें आपको पता है 2,500 व्यूज आए हैं अभी तक. और कितने लोगों ने देखा है पता है आपको पूरा वीडियो? 250 लोगों ने, सॉरी 140 लोगों ने. 5% लोगों ने एंड तक देखा है वीडियो. उसके बाद ये नौटंकी करेंगे, ये बातें करेंगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, हम बहुत तड़प रहे हैं. कोई तुमको नहीं बचाने वाला. अपनी कब्र तुमने खुद खोद रखी है, खुद तुमने अपने आप को अंदर डाल रखा है. कोई लड़की तुमको परेशान नहीं कर रही, कोई तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ, सब सही है. तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है. तुमने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि मेरे लिए लाइफ में क्या जरूरत है. 5%, कैन यू बिलीव इट? उस कंटेंट को निकालने में मेरे को 8 साल लगे, जिसमें से शुरू के 10 साल लड़कियों के पीछे भाग के, घर वाले मेरा साथ नहीं देते थे, घर वाले अपने बिजी रहते थे, लड़कियां मेरा साथ नहीं देती थी, इनको प्यार किया, इनसे क्या, वो कंटेंट मैंने निकाला है. इतना मुश्किल, इतना शिद्दत के बाद मैंने उस कंटेंट को निकाला है, और उस कंटेंट पे कितना आ रहा है? 5%. अब देखिए, इसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है. कल मेरा YouTube चैनल डिलीट हो जाए, ये पॉडकास्ट होना बंद हो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मेरी खुशी पे 1% फर्क नहीं पड़ेगा. जब मैं 2.5 लाख चैनल पे, 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 0 वीडियोस डाल सकता हूं 3 साल के लिए, आपको लगता है कि ये तो डालता नहीं है. अरे घोंचू, मैं क्यों नहीं डालता हूं? मेरे को मतलब ही नहीं है किसी चीज से, चाहे व्यूज आए चाहे ना आए.
उसमें मुझे पता है कैसे व्यूज आएगा। अभी रिसेंटली मैंने व्यूज किया था, 60-70 हजार व्यूज आए हैं। ठीक है, मुझे पता है किस तरह का कंटेंट चाहिए लोगों को। आज ही मैं अगर वो कंटेंट बनाने लगूं जिस तरह की कंटेंट चाहिए, करना ही नहीं है। जब मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता तो मुझे इस चैनल पे क्या फर्क पड़ेगा। मुझे पता है क्या, मुझे किस बात का गुस्सा आता है कि इस दुनिया को जो चाहिए वो दो तो ये दुनिया लेती नहीं है। इस दुनिया के साथ ये प्रॉब्लम है। इस दुनिया को एंटरटेनमेंट चाहिए, कहानियां चाहिए, कहानी सुनाओ। अरे साला कहानी से क्या होगा यार, क्या होगा कहानी से? कुछ होता है क्या कहानी से? कहानी तो देख रहे हो, पिछले 75 साल से कहानी ही तो देख रहे हो। बॉलीवुड क्या दिखा रहा है आपको? कहानी ही तो दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है? मैं बहुत अजीबो गरीब गुरु हूं और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, और मैं तुरंत भांप लेता हूं आदमी कहां है कहां नहीं है, और मैं उसी के साथ काम करूंगा जो मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। मैं वैसा गुरु नहीं है कि मैंने कंटेंट डाल के छोड़ दिया, मैं कुछ चुप हूं। मैं वैसा गुरु नहीं हूं कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, वो टाइम पास कर रहा है तो मैं चुप रहूंगा और अपने भाषण देके वहां से चला जाऊंगा। मैं वैसा गुरु नहीं हूं, और मैं गुरु ही नहीं हूं। पहली बात तो मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं कि आप मेरे सामने बैठे रहो और आपकी शक्ल पे दिख रहा है कि आप टाइम पास वाले हो, और मैं आपके सामने बैठ के एक शब्द नहीं निकालूंगा। सीधा या तो मैं उठूंगा या तो आपको निकालूंगा वहां से। इस पॉडकास्ट में मैं क्यों इतना ज्यादा कंटिन्यूअस हूं? क्या आपने कभी सोचा कि मैं स्पॉटिफाई के पॉडकास्ट, क्योंकि यहां पे लोग सुनते हैं। जो आदमी स्पॉटिफाई पॉडकास्ट पे है वो सब सुन रहा है, और जो सुन रहा है वो चाहता है वाकई में, वो उसके अंदर बर्निंग डिजायर है, उसके अंदर विश नहीं है, ये विश है। ये जो बातें होती है ना कि सर मेडिटेशन करें कि ना करें, पहले आप बताइए। इसका मतलब आप मेरे से एक वैलिडेशन चाहते हो कि मैं थप्पा लगाऊं मेडिटेशन में, तब आप मेडिटेशन करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मेरे को सब मना कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी में मत जाओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं इन लड़कियों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इनके पीछे पड़ूं, इनके नखरे, किसी को भरोसा करके अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में दे दो, फिर वो यूज करे, मैनिपुलेट करे। मैं नहीं चाहता ऐसा। मैं अपनी खुशी की चाबी स्पेशली लड़कियों के हाथ में नहीं देना चाहता हूं। मुझे लड़कियों से सख्त नफरत है रिलेशनशिप के लिए। एज अ पर्सन आई लाइक देम। व्हाई? बिकॉज आपको मैं भरोसा करता हूं, आपसे प्यार करता हूं, आपका 100% देता हूं, उसके बाद आप नाटक करते हो। आपका कभी कुछ फैमिली बीच में आ जाएगी, हम उससे फैमिली की वजह से शादी नहीं कर सकते। हमारी कास्ट आ जाए बीच में, कास्ट की वजह से शादी नहीं कर सकते। फिर आप कहोगे कि आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं, उस वजह से शादी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास पैसे नहीं, इस वजह से शादी नहीं कर सकते। आपको कोई और लड़का पसंद आने लगता है क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि आपको अपना बच्चा पालना है, तो आप अपना कंफर्ट देखना चाहते हो। तो क्यों रहूं मैं ऐसी दुनिया के साथ? अपनी खुशी की चाबी इस दुनिया को क्यों दूं? एक ऐसे दोस्त को, एक ऐसी लड़की को, एक ऐसे माता पिता को जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। ये मतलब ही दुनिया है बॉस। इस दुनिया में हर आदमी आपको चूस रहा है, चाहे कोई भी हो। कोई भी सेलिब्रिटी की शादी उठा लो, सब एक दूसरे को चूसते हैं। आपके घर वाले एक दूसरे को चूस रहे हैं। आप किसी को शादी करोगे, आप उससे चूसोगे, वो चूसेगा। ये चूसना, इट्स ऑल अबाउट सकिंग द हैप्पीनेस। यू गिव मी हैप्पीनेस, आई गिव यू हैप्पीनेस। इफ यू डोंट गिव मी द इक्वल हैप्पीनेस, आई विल मूव ऑन एंड गेट मैरिड विद समबडी एल्स। दिस इज द ब्लडी सिचुएशन ऑफ देयर इज नो अनकंडीशनल लव
Everything has a condition. You provide me, I provide you. That's it. And if there is somebody who is providing better, मैं आपको डिच कर दूंगी, चाहे उसके बाद आप पिछवाड़ा फाड़ के रोते रहो। आप ट्रेन के नीचे आ जाओ, आप नस काट लो, आप अपना गला घोट लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ते। दिस इज द वर्ल्ड। ये प्रॉब्लम है दुनिया की। तो अब दो तरीके हैं मेरे पास। या तो मैं इस दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करूं कि मैं अपने हिसाब से उसको ढालूं। कई लोग यही कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो अभी मानेंगे नहीं, करते यही है। वो सिचुएशन, वो सामने वाले को कंट्रोल करते हैं कि तुम टाइम पे आओ, तुम मेरा फोन उठाओ, मैंने इतने बजे कॉल किया, तुम ये करो, तुम फाइनेंशियल सिचुएशन सही करो, तुम मुझे एक बच्चा दो, तुम मुझे ये करो, तुम मुझे वो करो। वो कंट्रोल कर रहे हैं। एक ये है, और एक है कि आप अपने आप को नियंत्रित करो। तो क्या नियंत्रित हो सकता है? क्या आप नियंत्रित हो सकते हो या सामने वाला? दुनिया नहीं बदल सकती, दुनिया को कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। लेकिन आदमी यही कर रहा है। आदमी पता है क्या करता है? ब्लेम करता है। अरे मां बाप की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, तो कंट्रोल वहां पे है। इनकी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। अरे मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरा ये है, मेरा वो है। वो हर समय ब्लेम करता है या तो कंट्रोल करता है। दो ही चीजें करता है। मतलब वो अपने ऊपर कभी लेता ही नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा गुच्छा है ना, कि जो आपका क्वेश्चन है कि मैं मेडिटेशन करूं या ना करूं, क्योंकि आप क्यूरियोसिटी के रास्ते से, जैसे आपने बोला कि मैं बहुत क्यूरियस हूं, आप क्यूरियोसिटी के रास्ते से आए हैं। जिस दिन ये क्यूरियोसिटी का द्वार आपका दुखों का द्वार बन गया, उस दिन तुम समझ लेना कि तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा मुझे, तुम अपने आप राहों को ढूंढोगे। जैसे कि आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी में जाने से डिजायर छूट जाते हैं, मैं छोड़ना नहीं चाहता, तो मत छोड़ो। इनफैक्ट ये एक अच्छी चीज है। 17 साल 18 साल जो 19 साल के लड़के हैं, उसमें से बहुत ही कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो समझदार होते हैं, जिनको ये समझ में आता है कि लाइफ की डेप्थ्स क्या है। अभी आप लाइफ को सरफेस लेवल पे देख रहे हो। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मेडिटेशन से कुछ नहीं सही होता है। मेडिटेशन क्या है पहले समझने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज पे अटेंशन दे रहे हो, और वो अटेंशन जो है सिर्फ साउंड ऑफ साइलेंस या फिर ब्रेथ या फिर हार्ट बीट पे नहीं होनी चाहिए। वो अटेंशन हर जगह है, हर समय चल रही है वो। जब आप बहुत ज्यादा अधिक अटेंशन दे देते हो, ध्यान दे देते हो, तो आपको समझ में आता है कि मैं कौन हूं। और ये मैं कौन हूं और हु एम आई, ये सब क्यूरियोसिटी वालों के लिए नहीं है। जो भी आदमी जिज्ञासु है, जो आदमी जिज्ञासा के द्वार से आ रहा है, उस आदमी ने सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि मुझे जिज्ञासा है आपके कपड़े के पीछे क्या है। जैसे मेरी आपकी शादी होगी, मेरी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी कि आपके कपड़े के पीछे क्या है, क्या छुपा रहे हो, क्या छुपा रहे हो, अच्छा दिखाओ दिखाओ, दिखा दिया, हो गया खत्म। जैसे कि एक मैजिशियन होता है, जब तक वो ट्रिक नहीं बताता है तब तक आप उसके क्यूरियस रहते। जैसे ही ट्रिक पता चली, क्यूरियोसिटी खत्म। तो क्यूरियोसिटी इट्स लाइक बॉल को ऊपर फेंका, नीचे आ गई। इट्स लाइक अ वेरी टेम्पररी थिंग, इट विल नॉट टेक यू फार। द ओनली थिंग विच रिमेन्स इज दुख, बिकॉज दुख में आपके पीछे एक राक्षस भाग रहा है, और अब आपको आगे ही भागना है, आप पीछे नहीं भाग सकते हो। अब आपको भागना कब तक? जब तक वो राक्षस पीछा ना छोड़े, भागते रहो। ये प्रॉब्लम है दुख की। तो वहां पे आप बैठ नहीं सकते। क्यूरियोसिटी में कोई राक्षस नहीं भाग रहा है आपके पीछे। आप जब चाहो तब चलो, जब चाहो तब रुको, नहीं चलना मत चलो, जब चलना है तब चलो। घर की गार्डनिंग है,
वेर एज द डोर ऑफ सफरिंग, इस द्वार पे अगर आपको सफरिंग हो तो आपके पीछे राक्षस भाग रहा है, दुख का राक्षस। और अगर आप रुक गए तो आपको एक खा लेगा, और अगर आप चल दिए तो आपको रुकने का फिर कोई विकल्प नहीं है, इसमें चलना ही चलना है, इसमें रुकना नहीं है। जब तक डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाओ, सेफ जगह ना पहुंच जाओ, या एक ऐसी जगह ना पहुंच जाओ जहां पे राक्षस दौड़ भी रहा है तुम्हारे पीछे, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। खा भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सुरक्षा कवच है आपके पास, वो अंदर कभी नहीं आ सकता उस सुरक्षा कवच के। एग्जैक्टली दिस इज लाइक स्पिरिचुअलिटी। एक सुरक्षा कवच है आपके चारों ओर, सराउंडिंग में। ये सारे जो दुखों के राक्षस हैं, ये सब बाहर है। लेकिन किसको समझ में आएगा? जिस आदमी को ये पता हो अच्छे से कि बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि जिस आदमी को पता है कि बाहर कुछ है, वो आदमी बाहर भागेगा पहले। और कई लोग तो अपनी हसरतों को पूरा किए बिना ही मर जाते हैं। पूरी जिंदगी वो पैसे के पीछे भागते रहे, लेकिन पैसे नहीं कमा पाए। उनको मकान बनवाना था, घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, वो नहीं ले पाए, वो मर गए। उनकी हसरत रह गई, हवस रह गई, हवस पूरी नहीं हुई। तो हवस ही नहीं पूरी हुई तो पता कैसे चलेगा कि हवस की रियलिटी क्या है? हवस की रियलिटी पता करने के लिए पहले आपको हवस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आज मुझे समझ में आता है कि संदीप महेश्वरी जैसे लोग इतना परेशान क्यों होते हैं। क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ना लोगों को कृष्णमूर्ति समझ में आए, आज के जमाने में संदीप समझ नहीं आए, और समझ में भी आएगा तो सर हिलाते हुए चले जाएंगे। घर में कुछ और हिला रहे हैं, सेशन में जाके सर हिलाते हैं, अल्टीमेटली आखिरी में वो हिला ही रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं उनके पास। हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया। ये एक ऐसा रास्ता नहीं है जहां पे कोई गुरु, कोई वीडियो चैनल, कोई यूट्यूब चैनल, कोई पॉडकास्ट आपको लेके आएगा। ये रास्ता आपको खुद चूज करना है, स्वयं से। अगर आपने कहा ना कि मेरे यूट्यूब चैनल से आपके अंदर बदलाव आया, तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं। आपका बदलाव आप खुद लाओगे। आपका दूसरा जो प्रश्न है उसमें आप कुंडलिनी, अवेकनिंग एंड ऑल दैट, ये सब जो प्रश्न पढ़ते ही समझ में आता है कि आदमी बिगिनर लेवल पे है। जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है कि मेडिटेशन करूंगा तो कुंडलिनी अवेकनिंग ना हो जाए, ये जो प्रश्न करने वाला है बेसिक लेवल पे है। अब बेसिक लेवल पे है तो उसको बेसिक आंसर यही है कि आप चुपचाप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जब जिंदगी बहुत भारी होने लगे, जब जीवन में लगे कि कोई नहीं है, जब जीवन बहुत भारी हो जाए, जब जीवन में अकाल पड़ जाए, जब जीवन में भूखमरी होने लगे, भूखमरी मतलब सुख की भूखमरी, नॉट अन्न की, जब जीवन निराशा से भर जाए, जब लगे कि कोई नहीं है, तब ये मार्ग, तब मेरी पॉडकास्ट सुनना। उससे पहले मेरे पॉडकास्ट को सुनने, चैनल सब्सक्राइब करो अभी इसी वक्त जाके जितने भी लोग हैं सब चैनल सब्सक्राइब करो, और यूट्यूब चैनल अनफॉलो करो, और स्पॉटिफाई पे अनफॉलो करो इसी वक्त। मैं उस टाइप का गुरु नहीं हूं सर, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। मेरे सेशन में कोई आएगा ना तो वो 50 बार परखा जाएगा, फिर उसको बुलाऊंगा मैं सेशन में। ऐसे नहीं आ सकता कोई सेशन में। अभी रिसेंटली जिसके साथ मैंने काम किया है पॉडकास्ट पे, प्रतीम नाम है उनका, काफी सीरियस है वो स्पिरिचुअलिटी को लेके। एटलीस्ट वो आदमी उसका फोकस उस आदमी का बिगड़ता है, लेकिन वो आदमी काफी सेंसिटिव है इन चीजों को लेके। उसका जो द्वार है वो क्यूरियोसिटी का द्वार नहीं है। वो मात्र पूछ नहीं रहा है जानने के लिए कि मुझे जानना है सर, जानना है। अरे घोंचू जान के क्या होगा? कुछ भी जान के क्या होने वाला है?
कुछ नहीं होने वाला। ये तो वही होगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, जानना है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन होगा और कुछ नहीं होगा। वैसे ही तुम्हें जानना है कुंडलिनी क्या होती है, आत्मज्ञान क्या होता है, चलो देखते हैं। कपड़े के पीछे क्या छुपा रही हो, यही है तुम्हारा कड़वा सत्य, यही है। YouTube पे इतनी बड़ी चीज मैंने बताई, कंप्लीट रियलिटी फ्रेगमेंटल, उसमें हे भगवान, अरे भैया क्या आप उसकी ग्रेविटी को देख पा रहे हो कि जो मैंने बात करी है, मैंने क्या बताया, मैं फिर से बता देता हूं। जब भी आप कुछ एक्शन लेने वाले होते हो तो उस एक्शन को लेने के लिए जो डिसीजन है वो बेस्ड होता है फ्रेगमेंटल रियलिटी पे। आप रियलिटी का एक टुकड़ा ही बस समझ रहे हो कि वो ही रियलिटी है, वो टुकड़ा रियलिटी है, पूरी रियलिटी वो टुकड़ा है, जबकि वो सिर्फ एक टुकड़ा है। बाकी का 90% रियलिटी आपको पता ही नहीं है क्या है। ऐसे ही आदमी शादी करता है तो वो टुकड़ा पकड़ता है, वो कहेगा 10% शादी का बस साइड देखता है, 90% नहीं देखता है, और जब शादी कर लेता है तब उसको 90% का प्रत्यक्ष होता है। और फिर ऐसा आदमी कहता है यार ये कहां आ गए। ये सही अप्रोच नहीं है जीवन को जीने की। सही अप्रोच ये है कि आप बारीकी से इस चीज को समझें पहले कि मैं क्या कह रहा हूं, कंप्लीट रियलिटी, फ्रेगमेंटल रियलिटी, और जीवन में कुछ भी एक्शन लें तो कंप्लीट रियलिटी के साथ लें, ना कि एक फ्रेगमेंटल रियलिटी के साथ। कि आप कह रहे हो मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा और आपके माइंड में एक इमेज बनी हुई है उस अमेरिका की, वो इमेज एक फ्रेगमेंट है, वो कंप्लीट नहीं है, वो एक फ्रेगमेंटल रियलिटी है। वो फ्रेगमेंट पकड़ लिया आपने, आपको नहीं पता है अमेरिका। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, प्रशांत नाम है उस स्टूडेंट का, ही इज इन अमेरिका। अभी उनको क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस चल रही उनकी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए, तो बोल रहे हैं यहां पे साफ सफाई खुद ही करना पड़ता है, पूरा घर उनका, उनकी वाइफ, उनके बेटे, और वो पहले सुबह उठते हैं साफ सफाई करते हैं। सुनना ध्यान से। उसके बाद खुद खाना बनाते हैं, इंडियन खाना खुद ही बनाते हैं, क्योंकि मेड आती है तो लेती है $3000। $3000 लेती है मेड वहां पे। और सुनो, खाना नहीं बना पाती, इंडियन फूड नहीं बना पाती है, वो भी दिक्कत है। सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, घर की सफाई, झाड़ू पोछा करो, बाहर गार्डनिंग को जो बता रहे, गार्डन है, गार्डन में जो घास काटना होता है खुद ही काटना होता है। घास कोई आता नहीं है घास काटने। यहां पे जो नौकर लगा रखे आप लोगों ने, 1000 रुपए के बर्तन वाली लगा रखी है ना, 1200 रुपए की बर्तन वाली लगा रखी है, 2000 रुपए की बर्तन वाली, कुछ नहीं होता। आपके घर में लगा, हमें अमेरिका जाना, हमें क्या करेगा अमेरिका जाके। यहां तो फिर भी तेरे को लड़कियां मिल जाएंगी, वहां बिल्कुल नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहां की लड़कियां 1-on-1 करती हैं। वहां पे आपको एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, या जो भी है, मतलब प्यार करने के लिए, जो कुछ भी है आपका। बहुत नेगेटिव्स हैं, वो नेगेटिव कोई बताता नहीं है। जब ये साले वहां पहुंच जाते हैं अमेरिका, तो वहां से बताते नहीं है, ये वहां से कहते हैं कि अमेरिका सबसे अच्छा है। इस वजह से जो रियलिटी है और पक्की हो जाती है। ऐसे ही एक्टर्स है बॉलीवुड के, वो जो ऊपर पहुंच जाएंगे वो बताएंगे नहीं, तो नीचे वालों को क्या लगता है, ओह शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। अरे तुमको क्या पता क्या चल रहा है, तुमने एक इमेज पकड़ रखी है सिर्फ। वो जो इमेज है वो एक फ्रेगमेंट है, कंप्लीट रियलिटी तुम्हें नहीं पता है। इतनी बड़ी बात सोचो, कितनी बड़ी बात है ये। और लोग वहां पे कैसे अरे किस तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, आप समझ रहे हो। इनको मनोरंजन चाहिए। इन लोगों को यमराज को ऊपर से नीचे बुलाना पड़ेगा, और इन सबको एक पेड़ से बांध के यमराज से हंटर मरवाओ, यमराज से, तब इनको समझ में आएगा। ये लातों के भूत हैं।
इनको इनका सर पकड़ के जबरदस्ती दिखवाओ और समझाओ इनको। ये पागल हो चुके हैं, ये बिल्कुल बर्बाद है ये देश। ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी ये धरती बर्बाद हो चुकी है। इसका मैं आपको वो देता हूं प्रमाण। 1965 से ओशो और कृष्णमूर्ति सक्रिय हुए, उससे पहले और भी थे बट चलो वहां से लेते हैं। तो दुनिया चेंज होनी चाहिए थी, कोई दुनिया चेंज नहीं। ओशो आए चले गए, मर गए, कुछ नहीं हुआ। कृष्णमूर्ति आगे चले गए, मर गए, कुछ नहीं हुआ। अब यहां के जितने भी गुरु हैं आज के, हम दुनिया चेंज कर रहे हैं। अरे घोंचू, तुम कुछ नहीं चेंज कर रहे हो, तुम सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। दुनिया चेंज होती ही नहीं है। ये दुनिया और ज्यादा जालिम होने वाली है। ये दुनिया और ज्यादा मतलबी होने वाली है। आपको अपना देखना है। कुछ ऐसे लोग हैं, हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में चेंज होते हैं, लेकिन वो करोड़ों में से कोई 10-12 लोग होते हैं। ये होता है एक्चुअली 100, 200, 300 लोग कुछ होते हैं। वो यूट्यूब पे बात कुछ और करेंगे, ज्ञान पे लेंगे, उनके एक्शन देखोगे तो कुछ दोगले होते हैं। ये यूट्यूब पे ज्ञान पे लेंगे और एक्शन उनके जो 24 घंटे के होंगे पीछे के, अगर आप एक्शंस देखोगे तो उनके एक्शंस कुछ और कह रहे होंगे। एक्शंस में वो प्रोस्टिट्यूशन कर रहे होंगे पीछे जाके। तो ध्यान से अगर आप देखोगे, जो आदमी एक्शन में भी वही कर रहा है जो बोल रहा है, और जो आदमी एक्चुअली में जो कह रहा है वो कर रहा है, यही आदमी मेरे हिसाब से सही होता है, जिसके एक्शंस में वो दिखता हो। तो ये जो पूरा का पूरा आपका ये है ना कि मेडिटेशन करें या नहीं करें, हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे, कल को आपको गाली निकालने का मन करेगा। कई लोग ऐसा होता है, गाली निकाल देते, ज्यादा बोलो, निकालो, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी गाली निकाल सकता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। गाली अगर आप बार बार मेरे को दोगे तो मैं इग्नोर करूंगा, फिर एक दिन तो बोलूंगा ही। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि कई बार ऐसे गाली गलौज वाले कंटेंट जो है यूट्यूब से ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, तो उनको मैं हाइड कर देता हूं। तो क्योंकि सत्य सुनने की औकात नहीं किसी की, यही सत्य है। सत्य यही है। ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया जालिम है। लड़कियों के चक्कर में पड़ोगे, रोगे। लड़की अगर लड़के के चक्कर में पड़ेगी, रोएगी। जो आदमी आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, डेमोक्रेटिकली स्वतंत्र है, फिजिकली स्वतंत्र है, वो आदमी इमोशनल स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता? मानसिक रूप से स्वतंत्र क्यों नहीं हो सकता? क्यों हमें लड़की की जरूरत पड़ रही है? क्यों हमें लड़का चाहिए? जबकि वो आपको मैनिपुलेट करेगा। करना ही करना है। 1-2% चांसेस होते हैं बस ऐसी लड़की मिल जाए कि आपको लगे कि हां ये लड़की सही है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बहुत रिपरकशंस है। इसीलिए लंबे बाल वालों से दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, 1, 2, 3, 4 बार, 6, 7 बार जितना करना है करो, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाए तो दूर हो जाओ। क्योंकि प्यार रोकना नहीं कह रहा हूं। प्यार करो, सेक्स करो, प्यार करो, घूमो फिरो, नाचोगा, जो करना है करो, लेकिन 10 बार मत करो, 1000 बार मत करो, 3-4 बार करो, 5 बार करो मैक्सिमम। करते जाओ जब तक समझ नहीं आ रहा है, करते जाओ। फिर एक दिन पॉइंट आएगा जहां समझ में आएगा, फिर मत करो, फिर दूर रहो। जितना दूर रहोगे, क्योंकि देखो जब आप किसी के साथ रहते हो ना, तो वो आदमी भी खोखला है, आप भी खोखले हो, और आपस में लड़ाई होने लगती है। ये चक्कर बहुत खराब है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से तो मैंने अपना दिशा मोड़ ली, इसी वजह से तो अपने हाथ में अपनी खुशी को रखा। मैंने क्यों रखा? आज कोई साला आ जाए माई का लाल, बोल दे मैं छोड़ रहा हूं तुमको, तुम बर्बाद हो जाओगे, मैं उसके ऊपर हंसने लगूंगा।
मेरे घर वाले बोल दें, मैं उनके ऊपर हंसने लगूंगा। मेरे कजिन रिलेटिव बोल दें, दोस्त बोल दें, मैं उनके ऊपर हंसने लगूंगा। मेरी खुद की गर्लफ्रेंड बोल दे छोड़ जाओ, हंसने लगू। अरे तुम्हारे लिए जी रहा हूं क्या? क्या तुम्हारे सिवा मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं? ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरा है। तुम हो कौन? 2 कौड़ी के लोग, तुम क्या खुशी दोगे? जो खुशी होती है 6, 7, 8 महीने की होती है, तुम क्या खुशी दोगे हमें? कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तुम्हें क्या खुशी? अपनी खुशी का ठिकाना नहीं है, हमें खुश करोगे? यह आत्मविश्वास आता है आपके अंदर। जंगल में अकेले घूम रहे, मरने वाले हो, जंगल की खूबसूरती देख रहे हो आप कि मैं जंगल में मरूंगा, नेचर में मरूंगा, जहां मैं आया हूं वहीं से मरूंगा साला। शेर सामने आ गया, डर लगेगा, लेकिन अंदर से एक ठहराव भी होगा कि मरूंगा, ये साला मेरे को खाएगा, जाऊंगा तो मैं अपने ही पेट में ना। ठीक है, खा ले, क्या दिक्कत है उसको, एक हंगर तो मिट जाएगी उसकी। अपने आप को बचाऊंगा, मेरे चेहरे पे डर होगा, लेकिन अंदर से ठहराव होगा। जंगल में फंसा रहूंगा, बचने की कोशिश करूंगा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑन करूंगा, बियर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड को याद करूंगा। लेकिन अगर मरने वाला टाइम है तो फिर एक्सेप्ट भी कर लूंगा कि हाँ अब मरने। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग के साथ, जिस आदमी को आत्मज्ञान के साथ प्रॉब्लम है, जिस आदमी को आत्मज्ञान नहीं है, वो आदमी कभी स्वीकार नहीं कर सकता कुछ। ब्रह्मांड उसके सामने आके कुछ कहने की कोशिश करता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता है। ब्रह्मांड कहता है कि अब तेरा टाइम गया, अब तू नहीं बच सकता बेटा, तो आदमी उसको स्वीकार कर लेता है, कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनको अभी तक ये समझ ही नहीं आया है कि इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये दुनिया जालिम दुनिया है, क्योंकि अब 100 साल पहले आपने किसी का घर खटखटाया, ध्यान से सुनना मेरी बात, अपने ध्यान को बढ़ा लो। आज से 200 साल पहले टाइम मशीन में पीछे चलते हैं, 1800 शताब्दी। आप घर खटखटाओगे, खाना दे दो, पानी दे दो, मिल जाएगा। ऐसा 200 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आदमी आज कंटाप मार देता आपको? अगर आपने घर किसी का खटखटाया तो हो सकता है आपको थप्पड़ ही जड़ दे वो, या गाली दे के भगा दे, भाग ऐसे भाग। ऐसा क्या हो गया है? कभी सोचो, बैठ के इस चीज को अध्ययन करो। कभी अकेले रूम में जाके देखो कि हिस्ट्री क्या कह रही है, कि 1200 शताब्दी 1300 शताब्दी में किस तरीके का मन था हमारा, आज हमारे मन की दशा क्या हो गई है। और तुम रोज टेंपल जा रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हो, और नमाजें पढ़ रहे हो, और गिरजा घरों में जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। जबकि उल्टा होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए आदमी। कभी कभी सोचो, अध्ययन करो कि गांव में लोग शांत क्यों है, शहर में क्यों लोग गुस्से में रहते, दिल्ली में लोग क्यों गुस्से में है इतना, रोड रेज बढ़ता जा रहा है। कभी कोशिश करो सोचने की, घोंचुओं की तरह बस बैठे मत रहो कि गांव में लोग शांत क्यों हैं इतने, क्योंकि उनके डिजायर्स लिमिटेड हैं। इसका लॉजिक यह है कि अगर आप ज्यादा डिजायर परस्यू करोगे और अगर आपको आपके डिजायर मिल गए तो वो इंद्री को और ज्यादा क्रोधित करते हैं। जो आदमी दारू पीता है वही तो गुस्सा करेगा, जो आदमी सोबर है वो कैसे गुस्सा करेगा भैया? जो आदमी ज्यादा सेक्स करता है, ज्यादा मैथुन करता है, वही तो गुस्सा करेगा।
इसीलिए कभी एक्सीडेंट होता है, ध्यान से अगर देखो, दिल्ली में मैं बहुत ऑब्जर्व किया हूं, कभी अपनी आंखें खोलो देखो, दिल्ली में जब एक्सीडेंट होता है तो स्प्लेंडर वाला रुकता है। कहीं भी एक्सीडेंट होगा ध्यान से रुक के कभी ऑब्जर्व करना। स्प्लेंडर वाले, पैशन वाले जो होते हैं वो रुक जाते, कार वाले निकल जाते हैं, कार वाले नहीं रुकते। इसका मतलब ये नहीं कार वाले खराब कैरेक्टर है, कार वालों का क्रोध ज्यादा है, उनके अंदर सैडिस्टिक भावना आ गई है, वो एम्पैथेटिक नहीं है, एम्पैथी नहीं है उनके अंदर। स्प्लेंडर वाला गाड़ी रोक लेगा, कहीं भी जा रहा होगा गाड़ी रोकेगा, अपनी कार रोकेगा, सॉरी बाइक रोकेगा स्प्लेंडर वाला। वो कहेगा यार इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ। अभी मेरा दोस्त गिरा था, उसको लेकर, मैं खुद गिरा हूं कई बार, 3 बार गिर चुका हूं, मेरे हमेशा स्प्लेंडर वाले ने रोका। कभी देखा, कभी कभी गौर करो इन सब चीजों पे। बस बैठ के सुनते रहते हो घोचुओं की तरह, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं वाकई में बदलाव देखना चाहता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। कभी सोचो कि 1800-1700 शताब्दी में क्यों लोग इतने अच्छे थे कि दरवाजा खोलते ही खाना दे देते थे, भिक्षाम दे लीजिए। अच्छा, घी के साथ खाना दिया जाएगा, कोई ब्राह्मण अगर आ गया तो, नॉर्मल कोई आया तो ठीक है खाना मिलेगा, सिर्फ अच्छा खाना मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिजायर इतने नहीं थे, डिजायर की जो इंद्री, जो स्टिमुलेशन नहीं था इतना। पहले आपको ये देखना पड़ेगा अपने सिस्टम में, अपने बॉडी में, कि इंद्री कैसे क्रोध पैदा करती है ज्यादा जब आप नाटक करते हो। जब आप साउथ इंडिया में जाके रहोगे तो वहां पे आप कामर हो जाते हो। दिल्ली में जिस तरीके के लोग हैं उनके साथ वैसे ही बिहेव करते करते आप भी वैसे ही हो जाते हो। दिल्ली में रोड रेज इतना बढ़ गया है ना कि अभी मैं बाइक चला के जा रहा था, उसमें मेरा टायर आगे हल्का सा छू गया कार में। अब वो निकला बाहर, कहता है क्या कर रहे हो? मैंने कहा गलती से हो गया, क्या दिक्कत है? तो उसमें उसने लड़ाई करना चालू कर दिया। अब वो गाली बकेगा, लड़ाई करेगा, धूप इतनी तेज है तो मैं भी लड़ाई करूंगा, गाली बकूंगा। क्यों भाई, क्यों कोई रुकेगा? अगर मैं 300 साल पहले चला जाऊं और जो मुझे खाना दे रहा है दरवाजा खटखटाने के बाद उसको मैं गाली देना चालू कर दो, क्या नहीं करेगा? वो भी करेगा। जब आप गुस्से में होते हो और आप किसी को कुछ बोलते हो ना तो वो गुस्सा ट्रांसफर हो जाता है, इमेजिनरी एकदम एनर्जी टाइप का होता है ये, उसी में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। क्या हो रहा है इस देश में, इस पूरे जगत में क्या हो रहा है? यही है, लड़ाई 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 लड़ाई। किसी ने कुछ कर दिया तो उसमें लड़ाई। अभी यहां सोसाइटी में नीचे स्विमिंग पूल बनवा के नहीं दिया बिल्डर ने, तो उसमें इतना बवाल किया सोसाइटी वालों ने, इतना बवाल किया जिसकी कोई हद नहीं। गाली वगैरह, मां बहन की गालियां, बच्चा खड़ा है छोटा सा 3 साल का। अरे शर्म करो यार, स्विमिंग पूल ही तो है, क्या हो गया? और अगर तुमको फाइल करना है तुम फाइल कर दो, तुम गाली क्यों बक रहे हो? पूरा तुम धरना पे बैठे हुए तो धरने पे चुपचाप बैठो, आराम से बोलो। या चेजिस जो गाली गलो, जो ये सब आज पर लेडीज खड़ी, बच्चे खड़े, लोग आ जा रहे हैं, गाली गलो जो रहे। एक साला बुड्ढा है यहां पे सोसाइटी में, वो नीचे जाएगा, हर एक गार्ड की फोटो खींचता रहेगा। तो मैंने गार्ड से पूछा फोटो क्यों खींच रहा आपकी? कह रहा भैया कुछ भी करो, लेटे रहो बैठे रहो, आके फोटो खींच लेते हैं, ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि यहीं पे सामने गार्ड है, वो गार्ड थोड़ा गुस्सैल टाइप का था, ये जाया, ये बुढ़ा गया वहां पे उसकी फोटो खींचने, गार्ड बैठा हुआ था। अब गार्ड है भैया, मशीन थोड़ी है तो खड़ा रहेगा हमेशा, बैठा रहेगा, सो भी जाएगा। मैं तो कभी कुछ नहीं बोलता हूं, कई बार गार्ड सोता रहता है यहाँ पे, मुझे पता है इंसान है भैया, सो रहा है, क्या दिक्कत? कई लोग निकलेंगे, हाँ सो क्यों रहे हो? अरे साले तुम मशीन में, तुम नहीं सोते? अभी तुमको बैठा देना, तुम 24 घंटे सोगे। वो बेचारा गार्ड बैठा हुआ नीचे, रात में सो रहा है तो सोएगा ही ना, रात हो रही तो सोएगा, बेचारा थक जाता है, सोएगा नहीं क्या? 1 घंटा सो लिया तो क्या हो गया? मशीन थोड़ी है। तो उसकी फोटो खींच ली सोते सोते।
अब वो गार्ड गुस्से में था, कहता है जो करना करो, कर दो, अपलोड कर दे, उखाड़ ले जो उखाड़ पाना। अरे भाई साहब, तो ये नाटक है, खतरनाक 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 नाटक भाई साहब। थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। समझने की कोशिश करो, कंटेंट ऐसा देखो जो कंटेंट तुम्हें शांति पहुंचाए, जो तुम्हें लाइफ में ऊपर ले। कंटेंट सही रखो, उल्टे सीधे कंटेंट मत देखो भैया। कंटेंट से और ज्यादा आपको क्रोध पैदा होता है आपके अंदर, आपको नहीं पता है। कंटेंट क्रोध पैदा करता है। कभी 100 रील देखो, 150-200 रील एक साथ लेटे लेटे देखते रहो, आप जैसे बंद करोगे आपको एकदम गुस्सा आने लगेगा, मेरे को बेचैनी होने लगेगी। नहीं समझ में आया? चलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।